A spiritual person is he, irrespective of outside, I can be happy. I am free. My teacher used to say, you are free not to get upset. In our in the night in Prashanti, we just forget everything and sing songs, have music, dance. So one girl used to sing a nice song on guitar, but no one can take my freedom away. So a spiritual person is ever free. Nobody can make him miserable. So philosophy, path of philosophy is understanding this aspect. The message of Upanishads is you are free, moksha. So moksha, mukti, nirvana, liberation, kaivalya is not something very mysterious after death or after deep samadhi. Every minute we have choice. Choice to get upset in a given situation or not to get upset. We ourselves exercise that freedom. My wife shouts at me. My wife is very good. But theoretically, she shouts at me. I get upset today. Tomorrow she shouts at me. I laugh it off. I remember one wonderful quotation. One wife was shouting at her husband. Then he told, "What you are is so loud in my ears that I don't hear what you say." So sometimes people, even small children, very loving child, and suddenly one day comes and mom tries to love him, he tries to kick and push, then mother understands somebody has hurt his feelings and is ventilating on me. So our own loving husbands, dear friends, wives, sometimes they talk harshly with us. Perhaps they have been hurt by somebody. Perhaps there are so many changes in their life. Some mood is off. A wise person knows his friend, life partner very well and understands it is not because this person is not liking me. So what you are is so loud in my ears that I don't hear what you say. And of course then she hugs him and so a spiritual person is not affected by temporary changes. He understands fellow being. He is always free. So that is path of philosophy. I am free not to get upset because I understand people. I understand. That's why Mahatma Gandhi says, hate the sin, not the sinner. More deep I am within myself, more deep I understand other person. I don't get carried away by people's superficial behavior, both good or bad. Some people say, oh, he looked so nice, that's why I was attracted, now I know what really is. But a spiritual person is not carried away by superficial persona. Sometimes we get carried away by superficial behavior and think this person is very bad. Because I am very shallow. But if I am very deep within myself, in my spirit, I understand deeply other person. So first do I understand what I am, who am I? The great master Ramana Maharshi in South India, his entire philosophy was, who am I, Nanyar? Am I this body or mind or something beyond? So that is path of philosophy. But to understand ourselves also, I should be a little calm and quiet. Many people feel suffocated to sit with themselves without any music, without any movie, without reading any book or newspaper. Can I sit quiet by myself? Then I can go deep within myself. So to make myself quiet, path of psychic control, controlling my mind, psyche, that is yoga. What takes me to that path of spirituality is yoga. But as we see, yoga is both. At one level, yoga is technology, spirituality is science. Yoga is applied science at one level. But yoga can be both goal as well as path. When I say this person is a great yogi, a great master,
he must have achieved the highest what a master achieves, or he may be on the path, both. So yoga is that state of union with the divine. Somebody was telling me, sometimes ancient wisdom has to be put in modern language. There are wonderful books like Tao of Physics, Path of Physics. So he was telling how this author, Fritjof Capra, a nuclear scientist, he was motivated to write this book. So he says, one fine afternoon, I was sitting on the seashore gazing at the vast expansion. Theoretically, I knew the water in the waves, the oxygen in the air, the trees, the birds, the soft sand on which I am sitting, my own body, RNA and DNA, everything is energy. I knew it theoretically. But in one particular moment, I felt entire cosmos is nothing but pulsation, is spandana, that is Om. energy. Only pattern is different. Pattern in solid may be different than pattern in liquid and gas. But basically everything is energy and connected. We may look apparently separate, but deep down we are connected. So he makes a wonderful statement. What is this whole universe? What is this cosmos? The whole universe is a dynamic web, like web, everything is connected. That's why his next book is Web of Life. I cannot hurt your feelings without hurting myself, because it's a web, we are connected. That's how we should love each other. The whole universe, and this energy is not dull energy, it's a dynamic energy, ever pulsation. He calls this dance of Shiva. The whole universe is a dynamic web of inseparable energy patterns. So we all are united deep down. That's how we should love each other. What happened to Fritjof Capra at that moment is the state of yoga. He felt one with the whole cosmos. Like a wave in the ocean, vast, infinite ocean, and suppose a tiny wave has an opportunity to express itself, what it will say? Oh, ocean is so vast, and I am a small, tiny wave in this vast ocean. And then wave subsides. And when it subsides, it says, my God, I am not alone, I am not separate. I am not tiny wave, I am part of this ocean. Not part, I am the ocean. When wave merges in the ocean, there is no individuality. The individual center consciousness feels one with the cosmic consciousness. That is a moment of yoga, union. You feel one with the whole. So a person who feels one with the entire creation is a spiritual person. And when all the time you feel that oneness, there's tremendous expansion. Swami Vivekananda says expansion is life, contraction is death. So perpetual feeling of expansion. That's what Kavelappa, the last chapter. Freedom, chapter of freedom. So freedom is the ultimate goal. Yoga is, you can say, yoga is a path for spirituality at one level. At other level, yoga is the goal. But we'll discuss more and more. Patanjali was a great master. As it happens, if I am a great master, the most primary symptom of a great master is to be free from ego. When I am one with the whole, then I don't have a name.
So all the great masters, they never bothered about their personal history. So if you see all the Upanishads, all the ancient scriptures, there is no history. Actually, you go beyond the time. So nobody knows much about Patanjali. Person is not important. Philosophy. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्थं सवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजन, और मैं आप सब लोगों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे पर्व भारतीय जनमानस में रूढ़ है, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं और यह जीवन की आवश्यकता है। कायदे से तो हमारा संपूर्ण जीवन ही ऐसा पर्वों का जो उत्साह उमंग होती है ऐसा भरपूर हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। पुनः एक बार सबको बधाई देकर बात आगे शुरू करता हूँ। परसों हम लोगों ने पतंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का हमने 22वां सूत्र देखा था। आज हम 23वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े में भूमिका यह थी कि जो साधक होता है उसने यह जो जगन नाटक चल रहा है ईश्वर द्वारा रचित, इसमें ना वह नट बने ना वह प्रेक्षक बने और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इस नाटक को वह देखते रहे, किसी प्रकार उससे जुड़े ना। तो इतना भर यदि वह कर लेता है तो फिर वह आगे की जो सीढ़ी है वह चढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसमें दृष्टा और दृश्य इन दोनों की जो भूमिकाएं हैं उसके बारे में पतंजलि महामुनि बता चुके हैं। आगे दृष्टा और दृश्य इनका संयोग जो होता है उसका क्या प्रयोजन है ऐसा बताते हैं। पहले उन्होंने बताया कि दृष्टा कौन है, फिर दृश्य क्या है, फिर दृश्य यह दृष्टा के अपवर्ग के ओर जाने के लिए, क्योंकि उसकी भोगार्थता जब समाप्त हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि इससे प्राप्त जो सुख है वह स्थायी नहीं है, चिरंतन नहीं है, शाश्वत नहीं है, इससे आगे बढ़ना चाहिए, शाश्वत सुख की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए दृश्य की निर्मिति उसके लिए हुई है, ऐसा पतंजलि महामुनि ने पिछले सूत्र के माध्यम से बताया। इस सूत्र में, अभी आगे आने वाले सूत्र में, दृष्टा और दृश्य इनके संयोग का प्रयोजन बताया है, वह हम थोड़े में ही समझ लेते हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूप उपलब्धि हेतुः ऐसा कहा है। तो दृष्टा के लिए दृश्य क्या है? तो दृष्टा
यह स्वामी है, तो दृश्य क्या हुआ, उसकी मालकियत हुआ, मतलब उसका स्व हुआ, जिस पर उसका अधिकार चल सकता है, जो उसका है ऐसा उसको लगता है। तो स्व स्वामी शक्यो हो, स्व वह दृष्टा, स्वामित्व किस पर स्वामित्व है, तो दृश्य पर, तो दृश्य तो उसका स्व हुआ। इन दोनों की जो उपलब्धि है, यानी उसका जो यथार्थ ज्ञान है, यह होना चाहिए। इसीलिए यह संयोग की भूमिका उसमें पतंजलि महामुनि द्वारा वर्णित की गई है, और वह कहते हैं कि संयोग के लिए ही दृष्टा और दृश्य बने हैं। जैसे कोई एक वस्तु किसी की होती है, तो इसमें दो बातें तो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। किसी की है मतलब एक है तो स्वामी है, और दूसरा है उसकी वह वस्तु है। तो इस प्रकार उसके स्वामित्व वाली वस्तु और वह स्वयं स्वामी दृष्टा, ऐसे दो भाग उसके होते हैं। तो जो दृष्टा है वह इस दृश्य शक्ति के स्वरूप से इसको अलग समझ लेता है, यह उस दृश्य शक्ति का लाभ है, इसकी उपलब्धि है। और इस कारण यह जो प्रतिक्षण परिणामी यह जो दृश्य है, इस दृश्य से मैं अलग हूँ, यह उसको लगने लगता है, और यह अथवा लगना चाहिए। उसका यह लगना यही दृश्य के निर्मित की उपलब्धि है। अन्यथा यह संयोग होता रहेगा और उसको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं दृष्टा को कि वह अलग है। उसको इस बात की प्रतीति होना कि वह अलग है, यह दृश्य के जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दृष्टा की उपलब्धि है कि उसको स्वरूप का ज्ञान होता है, जानकारी होती है, और दृश्य की उपलब्धि है कि उसने दृष्टा को वैसी प्रतीति ला दी कि वह दृश्य से अलग है। ये दो बातें उससे प्राप्त हो रही है, और इसलिए दृष्टा दृश्यु संयोग जब होता है तो सामान्य रूप से जो सामान्य साधक या बिल्कुल प्रारंभिक साधक होते हैं, उनके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। वह यह कि यदि ये पता ही पड़ना है तो फिर ये दृश्य के साथ संयोग करना ही क्यों, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। देखो क्या होता है, एक विद्यार्थी, और जब विद्यार्थी स्कूल में जब जाता है बालक, तो उसके गुरुजी या टीचर उसको पूछते हैं कि भाई तुमने जो वो काम दिया था या जो पढ़ाई करने के लिए कही थी वह किया क्या, और वह जब नहीं कहता है तो उसको दंड देते हैं, है ना। उसको अनुशासन में आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वे दंड देते हैं। तो दंड देने के दो उद्देश्य हैं। एक कि उसने जो काम नहीं किया उसका उसको भुगतान करना है, उसका दंड भुगतना है, और दूसरा आगे चलकर फिर वैसी ही स्थिति, मतलब जिसमें दंड भुगतना पड़ेगा, ऐसी ना हो तो पढ़ाई कर लो। तो ऐसे दो बातें उसमें से उत्पन्न होती है। तो एक होता है वह भूत की, कि भूत में वह कुछ कर चुका है, तो पढ़ाई नहीं करी इसलिए दंड। ऐसे ही साधक का भी है, वो भूत में कुछ कर चुका है, पहले कुछ कर चुका है, उसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में वर्तमान में उसको कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो यह एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात जो है वो उसका भविष्य में उस दृश्य का क्या प्रयोजन है, उस संयोग का क्या प्रयोजन है दृश्य के साथ। तो अब पीछे के कारण, मतलब उस कारण के कारण कार्य हो रहा है, अभी दुख हो रहा है, तो
तो आगे वैसा उत्पन्न ना हो, इसलिए वह समझ ले उस बात को और वैसी बात उत्पन्न ना हो, इसलिए प्रयासरत हो जाए। तो दंड का विद्यार्थी के लिए जैसे डबल प्रयोजन है कि उसने काम नहीं किया इसलिए दंड हुआ, और आगे चलकर फिर से वैसा ही दंड पुनः लेने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ठीक ठाक हो जाओ भैया। इस प्रकार की दो बातें यहाँ दृश्य के द्वारा आती है। तो संयोग हुआ था इसलिए अभी के दुख है, और आगे चलकर दुख निर्मित ना हो इसलिए इससे मैं हट जाऊं, यह उस संयोग का कारण है, यह उस संयोग का कारण है। लेकिन योग शास्त्र केवल इतना नकारात्मक भाव लेकर नहीं काम करता। योग शास्त्र पौरुष प्रयत्न का साथ लेता है, पौरुष प्रयत्न पर वह रहता है, वह निराशावादी नहीं है। तो भूतकाल के अनेक जो संकट है उनको मन में लाकर वह निराशावादी बन जाए, ऐसा योग शास्त्र का कोई प्रयास नहीं है, और वह प्रयत्न परांगमुख हो जाए, प्रयत्नों से हट जाए, यह नहीं चाहता है योग शास्त्र। योग शास्त्र आशावादी है कि भविष्य में जो प्रयोजन होने वाला है उस प्रयोजन की जो सिद्धि है उस पर दृष्टि रखकर वह आशावादी रहता है, और उन पौरुष प्रयत्नों को साथ लेकर वह यह सोचता है कि मैं जोरदार प्रयास करूं, और इतना प्रयास करूं कि जिसके कारण मैं इस मार्ग की जो अंतिम स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करूं। इसलिए स्वस्वामी शक्त्यो हो स्वरूपोपलब्धि ऐसा बताया गया है, वह उस आशावादित्व के कारण है। दृष्टु दृश्य संयोग जीव को संसार चक्र में भ्रमण तो करने के लिए बातें करता है। यह योग शास्त्र को मान्य है कि दृश्य के साथ संयोग होने से संसार चक्र में पुनः आना पड़ता है, लेकिन यह भ्रमण जीव को, या यह दृश्य के साथ संयोग जीव को स्वरूपोपलब्धि होनी चाहिए, अर्थात कैवल्य प्राप्ति होनी चाहिए, इस बात की ओर भी उसका ध्यान, उसका लक्ष्य वह आकर्षित करता है। और इस कारण संसार की ओर देखने का साधक का दृष्टिकोण इस शास्त्र के अभ्यास से, इस शास्त्र के प्रकाश में जब वह मार्ग क्रमण करता है, दृष्टा अर्थात साधक अर्थात मुमुक्षु अर्थात योगाभ्यार्थी, तो धीरे 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 उसकी वृत्तियां बदलती जाती है, और मार्ग में जितनी बाधाएं आती है उतनी अधिक उत्कटता से, उतना अधिक पौरुष प्रयत्न वह करता है, और फिर वह उसका स्वभाव ही बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी अड़चनें आने से उससे ना वह डरता है ना वह रुकता है। तो योग शास्त्र की यही देन है, यह आशावाद। कैसी भी कठिन परिस्थितियां आए, कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी मार्ग में बाधाएं आए, लेकिन हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो इस प्रकार दृष्टु दृश्य संयोग, तो संसार की जो अनर्थ परंपरा जो प्राप्त होती है यह इस संयोग के कारण, लेकिन इससे यदि हटते हैं, इससे हटना चाहिए, तो फिर कैवल्य प्राप्ति होती ही है, ऐसा विचार उसके मन में आता है। तो दुखों से वह निराश न होकर, रुकावटों से बाधाओं से निराश न होकर फिर वह आगे बढ़ता रहता है। तो दृढ़ पूर्वक निश्चय पूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए,
ऐसा उसको लगता है। यह इस बात की विशेषता है और इसलिए यह सूत्र पतंजलि महामुनि ने यहाँ पर दिया है। अब अगले सूत्र में 24वें सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं कि संयोग का कारण क्या है। भाई संयोग के कारण ऐसा ऐसा होता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन संयोग क्यों हो, ये क्यों होता है, ऐसा प्रश्न अनेकों के मन में उठता है। तो हम जब यह प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ी सी हमारी अनभिज्ञता भी यहाँ पर रहती है। तो इस संयोग का जो कारण है वह अविद्या है, ऐसा पहले ही कहा है। पतंजलि महामुनि इस 24वें सूत्र में कहते हैं तस्य हेतुरविद्या, तस्य हेतु अविद्या, ऐसा यह सूत्र है। उसका हेतु काय का, संयोग का। संयोग मान लो ये कार्य है, परिणाम है, तो उसका कारण क्या है, अविद्या। उसका हेतु क्या है, तो अविद्या। उस संयोग का कारण अविद्या है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। तो पिछले सूत्र में संयोग का प्रयोजन बताएं कि संयोग के कारण ही आप यह जान लेते हो कि इस दृश्य में राम नहीं है, मुझे इससे हटना है और मुझे मोक्ष प्राप्ति कर लेनी है। बड़ी उत्कटता के साथ और उस प्रयत्न के साथ मुझे वहां तक पहुंचना है, ऐसा उसमें आता है। तो यह प्रयोजन है। और अब इस सूत्र में उसका कारण बताया। क्या कारण है उस संयोग का, तो अविद्या, यह उसका कारण है। तो अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म वस्तुओं के जगह पर वह नित्य है, वह शुचि है, अर्थात स्वच्छ, साफ सुथरी, निर्मल, पवित्र है, ऐसा लगना। वह सुख देने वाली है, वह आत्मख्याति ऐसी होगी उससे, ऐसा लगना, यह अविद्या है। जो अनित्य है, अशुचि है, दुखपूर्ण है, अनात्म है, यह अविद्या के कारण तो उस जगह पर क्या लगना चाहिए, सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है कि वह नित्य है। अशुचि होकर भी वह शुचि है, ऐसा लगता है। दुखपूर्ण होने के बावजूद भी सुखपूर्ण ऐसी लगती है। और वह अनात्म होकर भी आत्मख्यातिवान है, ऐसा लगता है। तो यह अविद्या, ऐसे अविद्या का लक्षण पहले ही देख चुके हैं। तो दृष्टा और दृश्य संयोग यानी क्या, तो इन दोनों का एक दूसरे पर होने वाला अध्यास। अध्यास मतलब इसका उस पर आरोपित होना, उसका इस पर आरोपित होना। मतलब अनित्य है, अशुचि है, दुखपूर्ण है, अनात्म है, तब भी वह नित्य है लगना, शुचि है ऐसा लगना, या वह सुखपूर्ण है ऐसा लगना, या वह ख्याति आत्मख्यातिवान है, मतलब विवेकवान है ऐसा लगना, यही है अध्यास। यह अध्यास क्यों हो रहा है, मतलब एक दूसरे पर क्यों आरोपित हो रहे हैं, क्यों यह गलतफहमी पैदा हो रही है, तो यह अविद्या के कारण, इसे ही अविद्या ऐसा कहा गया है। तो यह अविद्या है तो बड़ी तेज और है तो बड़ी, वैसे देखा जाए तो दुष्ट शक्ति है और आदमी को घेरे हुए रहती है, आगे बढ़ने नहीं देती है, रोक कर रखती है, भटकाती है। तो इस अविद्या के कारण ही यह संयोग होता रहता है और यह संयोग हो हमें सुख मिल रहा है, यही नित्य है, यही सर्वोच्च है, यही जीवन का सार है, यही उपयुक्त है, यही आत्मवान है, यही विवेक से पूर्ण है, ऐसा भ्रम पैदा होता है, ऐसा लगता रहता है। इसलिए अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि फिर बताते हैं
कि इस संयोग का कारण तो अविद्या है, लेकिन क्या इसके आगे भी कोई स्थिति हो सकती है कि जो दुखपूर्ण नहीं है, जो वास्तव में नित्य है, शुचि है, सुखपूर्ण है, ख्यातिवान, आत्मख्याति से परिपूर्ण है, क्या ऐसी कोई स्थिति है? अर्थात अविद्या का अभाव है, क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है? अगले सूत्र में कहा गया है, तद्भावात् संयोग अभावो हानम तदृशेः कैवल्यम। संयोग का कारण यह अविद्या है, इसका अभाव होने से संयोग का भी अभाव हो जाता है। अविद्या का अभाव हुआ तो संयोग का अभाव हो जाता है। इसी स्थिति को जहाँ अविद्या का अभाव हो जाता है, अर्थात संयोग का ही अभाव हो जाता है। किसका संयोग? तो दृष्टु और दृश्य, इसे हान यह संज्ञा दी गई है। इस स्थिति को हान ऐसा कहा गया है। अर्थात हान यानी क्या? तो दृश्य स्वरूप जीव के कैवल्यावस्था, ये जो दृष्टा है यह कैवल्यावस्था को, जो दृश्य स्वरूप जीव है वह उस अवस्था में पहुंच जाता है। वह जो अवस्था है जिसमें पूर्णतः अविद्या का अभाव रहता है, जिसके कारण संयोग पूर्णतः नष्ट हो जाता है, वह स्थिति आने की है। पूर्व में हम लोग कुछ तो पहले देख चुके हैं। तो विद्या से ही अविद्या का नाश हो सकता है। जब विद्या का जन्म होता है तो अविद्या का नाश होता है। जब अविद्या का नाश होता है तो हान की स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है। हान का सीधा सीधा अर्थ है जो अत्यंत आनंद की स्थिति है, जो कैवल्य की अवस्था है, पूर्ण सुखपूर्ण है, आत्मख्यातिवान है, शुचि है और नित्य है और दुख का राहित्य है। ऐसी जो अवस्था है वह हानि की स्थिति है। तो संयोग का कारण अविद्या है, ये हमने पिछले सूत्र में देखा। तो कारण का नाश होने से कार्य का नाश होता है। भाई कारण ही नष्ट हो गया तो उससे निर्मित जो कार्य है, उसके प्रभाव के कारण जो उत्पन्न होना है, उसका नाश हो जाता है। तो संयोग का अभाव यदि हो जाता है तो अविद्या का नाश हो जाने से स्वतः ही हो जाता है। अविद्या का नाश हुआ तो संयोग का अभाव हो गया, और संयोग का अभाव हुआ तो वहां पर सुख की अवस्था अथवा कैवल्य की अवस्था या हानि की अवस्था वहां उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। ये स्वाभाविक है। तो अविद्या का नाश विद्या विद्यायाम निहन्त्येव तेजस्वी निरंगवत, जैसा तेज और तिमिर मतलब उजाला और अंधकार, यह दोनों साथ ही चलते हैं। तो विद्या अविद्या, विद्या और अविद्या यह दोनों वैसी ही साथ चलती है। उसी न्याय से प्रतियोगी जो विद्या है उसी से अविद्या का नाश होता है। उजाला होने से अंधकार समाप्त होता है। अंधकार को दूर करने से अंधकार नहीं समाप्त हो सकता। मान लो किसी अंधेरी गुफा में हम गए और बाल्टी बाल्टी से अंधेरा बाहर फेंकने की कोशिश करी, नहीं जा सकता है। वहां हमें दीप जलाकर प्रज्वलित कर उजाला निर्मित करना पड़ेगा, तब वह अंधकार दूर होता है। ठीक उसी प्रकार अविद्या का यदि नाश करना है तो विद्या का उजाला, तेजस तिमिर संगवत, तेज और तिमिर इन दोनों का संग मतलब संयोग, इन दोनों का जोड़ है, तो वह दूर करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के ये प्रतियोगी के समान हैं, या तो ये रहेंगे या वो रहेंगे। दीप प्रज्वलित हुआ
अंधकार का नाश हुआ और दीप बुझ गया तो अंधकार पुनः उत्पन्न हुआ। यह हर समय होता रहता है। इसलिए विद्या से अविद्या का नाश होना, इसी को हान नाम की योगिक संज्ञा उसको दी गई है, उसको कहते हैं। ऐसा हान होना यही दृश्य स्वरूप पुरुष की कैवल्य अवस्था है, यही कैवल्य अवस्था है। तो आत्म साक्षात्कार से अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश से दृष्टु और दृश्य इनका संयोग होता नहीं है, और संयोग का नाश अर्थात त्रिगुणों का, तो उनका जो कार्य रूप परिणाम आत्मा के इर्द गिर्द आत्मा पर पड़ता है, और उस कारण आत्मा अनन्य ध्यास ये जो उत्पन्न करा लेता है, जैसा अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा आदि आदि, वह सारा वहाँ नष्ट होता है, समाप्त होता है। और यही दृश्य स्वरूप आत्मा की कैवल्य अवस्था है। ऐसा यह 25वां सूत्र तद्भावात् संयोगात् अभावो, है ना, संयोग अभावो हानम तदृशेः कैवल्यम। उस प्रकार का संयोग जहाँ पर अविद्या के कारण उसका अभाव हो जाता है, तब संयोग का अभाव होने से हान स्थिति उत्पन्न होती है। वह जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी की संज्ञा हान है। इस हान का जो उपाय है, क्या है उपाय, क्या है उसका मार्ग, यह अगले सूत्र में बताया है। 26वें सूत्र में विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाया, उस हान का उपाय क्या है, उस हान का मार्ग क्या है, उस हान को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, वह पतंजलि महामुनि अगले सूत्र में 26वें सूत्र में बताते हैं। वह कहते हैं विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः, दृष्टा में और दृश्य यह चित्त जो धारण करता है और उसकी वृत्तियां आदि इससे अलग है, ऐसा विवेक जब उदित होता है तो उसको कहते हैं विवेक ख्याति। तो मैं दृष्टा और दृश्य यह चित्त के कारण वृत्तियों के रूप में वह अभिव्यक्त हुआ है, तो मैं उससे अलग हूँ, मैं दृष्टा। ऐसा विवेक जब उत्पन्न होता है तो उसे विवेक ख्याति ऐसा कहते हैं। तो संशय, विपर्य, भ्रम इत्यादि जो दोष है, इनका विप्लव होता है, इनका अंदर ही अंदर झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है। इन दोषों से युक्त जो नहीं है, ऐसी अविप्लवा जो स्थिति है, यह तो विप्लव पैदा करने वाले हैं। कौन? संशय, विपर्य, भ्रम आदि दोष। तो जो अविप्लवा मतलब इनका नहीं होना, वह जो स्थिति है, उस स्थिति को विवेक ख्याति ऐसा कहा गया है, जो विवेक के कारण उत्पन्न होती है, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है। यह जो ख्याति, यह जो बुद्धि है, विवेक से परिपूर्ण, इसे विवेक ख्याति ऐसा कहा गया है। ऐसी अविप्लवा विवेक ख्याति, यह जो स्थिति है, यह उस हान का, उस कैवल्य स्थिति, उस पूर्ण शांति, उस पूर्ण आनंद की, अविद्या के पूर्ण अनुपस्थिति की जो स्थिति है, वह पहुंचने का जो मार्ग है, वह हान का उपाय है, हान का मार्ग है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। विद्या यानी अविप्लवा विवेक ख्याति। चित्त और पुरुष यह एक दूसरे से भिन्न है, ऐसा हमने इसे अनेक बार देखा है। लेकिन चित्त पर
ऐसा एक भाव निरंतर आरूढ़ होकर रहे तो फिर वह जो स्थिति बनती है उसे विवेक ख्याति ऐसा कहते हैं। तो साधक ने यह विचार करना चाहिए कि चित्त और हम पुरुष यह एक ही है, और उसको ऐसा एक बौद्धिक विचार, बौद्धिक प्रत्यय आ सकता है कि चित्त और पुरुष एक ही है ऐसा लगना। तो मैं दो अलग अलग है, लेकिन ऐसा लगना, ऐसा एक बौद्धिक स्तर पर ऐसा उसको लग सकता है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। तो इस बौद्धिक प्रत्यय को धारणा, ध्यान और समाधि, इनके सहायता से अनुभव की जोड़ भी देनी पड़ती है कि मैं चित्त से कुछ हटकर हूँ, कुछ अलग हूँ, मैं केवल चित्त नहीं हूँ, चित्त के भी आगे चित्त का भी जो उपादान है, वह विवेक ख्याति रूप, वह जो स्थिति है, वह वास्तव में मैं हूँ। उस स्थिति को, उसको, उस प्रत्यय को प्राप्त करने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अनुभव की आवश्यकता, जोड़ बिठाने की आवश्यकता रहती है। तो असंप्रज्ञात समाधि में ऐसा अनुभव कुछ समय के लिए आता है, कुछ क्षणों के लिए आता है, लेकिन कभी कभी जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसको संशय, विपर्य इत्यादि की बाधा भी उसको बाधित करती है, और उसके कारण वह ठीक है क्या ऐसा उसके मन में आता है, और चित्त में विवेक ख्याति की जो अवस्था है वह स्थिर रह नहीं पाती है, और उसमें अनेक प्रकार की रुकावटें वहाँ पर आती है। मतलब कुछ देर के लिए विवेक ख्याति की अवस्था आती है, कुछ देर के लिए उसमें से वह वापस होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह जो विप्लव है यह धीरे धीरे अभ्यास से कम होते जाते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते कुछ लोगों के बताने से, कुछ लोगों का अनुभव लेने से, तो आप्तोक्ति खननम तथो परिशीलाद्युत्कर्षणम स्वीकृति, जैसे कुछ आप्त लोग जिनकी बात सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, ऐसे लोग जब कुछ ऐसी चीजें बताते हैं तो हमारे अंदर भी वह बात स्थापित होती है, स्थायी होती है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार हम अंततगत्वा अपने सद्गुरु ने बताई हुई बात, उस कैवल्य के अनुभव के कारण शास्त्र आदि का अभ्यास करने से, पढ़ने से, मन में और अंतःकरण में बिठाने से फिर एक बात धीरे धीरे स्थापित होने लगती है कि मैं तो वास्तव में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और अविद्या और उसका जो कार्य आदि, इससे किसी प्रकार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हूँ, और पूर्व संस्कार के कारण ही मेरे अंदर यह संशय, विपर्य, भ्रम आदि विप्लव उत्पन्न हुए थे, और यह अंतराय पुनः उत्पन्न होते हैं। लेकिन वह निर्विकल्प समाधि की स्थिति में मैं पुनः उसका यदि आश्रय करूँगा तो ये सारे विप्लव, सारी बाधाएं, सारे अंतराय धीरे धीरे समाप्त होकर धीरे धीरे समाहित अवस्था में ही मैं रहता हूँ या बढ़ता हूँ। और कभी कभी स्थान अवस्था में यदि मैं जाता हूँ तो भी फिर से वह अच्छा स्फूर्ति प्राप्त होने से मैं धीरे धीरे अंदर से सब दिशाओं से बिना प्रयत्न से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ऐसी अवस्था में अखंड तो उस स्फुरण के कारण मैं रहने लगता हूँ। और यह जो अविप्लवा विवेक ख्याति है, वह जो चरम अवस्था है,
उस अवस्था में बने रहना यह संभव हो पाता है साधक के लिए। ऐसी अविप्लवा मतलब किसी प्रकार का अंदर कोई झंझट, कोई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंतराल, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ऐसी जो विवेक ख्याति की संपूर्ण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और अखंड स्फुरण वाली यह स्थिति जब बनी रहती है, तो वह बनी रहने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं वह सारे उपाय हान के उपाय है। इस प्रकार 4 स्थितियां बताई गई है। हेय, त्याज्य, दुख। क्या है उसका, क्या हेतु है? भाई दुख है तो कोई ना कोई उसका कारण रहा होगा, क्योंकि कार्य के रूप में दुख है तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। तो हेय हेतु क्या? तो दृष्टा और दृश्य इनका संयोग, इस कारण तो अविद्या के कारण, तो अविद्या ही उसका हेतु है। इसका उस त्याज्य दुख का। लेकिन दुख कौन से? 2 प्रकार के। एक पूर्व जन्म में कुछ किया, इससे वर्तमान में कुछ दुख भोगना पड़ रहा है, तो तितिक्षा के साथ अपने मन पर नियंत्रण, मनोनिग्रह कर उस दुख को तो हम भोग लेंगे, क्योंकि वो भोगना तय है। लेकिन बहुत पुरुषार्थ के साथ हम उसको भोग लेंगे और उसको समाप्त करेंगे। लेकिन अब हम वर्तमान में ऐसा कुछ न करें कि आगे आने वाले दिनों में हेयम दुखम अनागतम, जो आगे आने वाला जो दुख है वह वास्तव में त्यागने योग्य है। तो उसके लिए अभी ऐसी व्यवस्था बना ले कि आगे वह दुख निर्मित हो ही ना। तो आगे कौन सी स्थिति हो सकती है? तो हान की अवस्था बन सकती है। तो हान की अवस्था कैसी है? जो अवस्था नित्य, शाश्वत, शुद्ध, पूर्ण, सुखपूर्ण, आनंद की, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त या मोक्षावस्था या पूर्णतः अपरावर्गता, यह जो अवस्था है वह अवस्था प्राप्त हो सकती है। वह कैसे? तो अविद्या का नाश कर, क्योंकि अविद्या के कारण ही यह हेय हेतु उत्पन्न हुआ और दुख उत्पन्न हुआ। तो वह जो परिपूर्ण शुद्ध सात्विक शांति की, आनंद की अवस्था है, तो उसके लिए अविद्या का नाश होना जरूरी है। तो वह हानि का उपाय है। तो यह अविद्या विवेक ख्याति द्वारा उसका नाश करना चाहिए। ऐसा इन सूत्रों के माध्यम से पतंजलि महामुनि ने बताया है। इस प्रकार विवेक ख्याति जिस साधक को हो जाती है, अर्थात हान की अवस्था अर्थात कैवल्य की अवस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, तो वह इस हानावस्था में किस प्रकार की प्रज्ञा कैसी होती है, रहती है, यह आगे के सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। इसको फिर हम कल आगे चलकर देखेंगे। आज इतनी ही बात। मुख्य रूप से हमारे जीवन में जो दुख है, उन दुखों का कोई कारण है, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सारे जगत की, प्रपंच की, संसार की रचना है, इसका भोग लेते लेते हमारे अंदर यह भाव जगना चाहिए कि यह हमारे फायदे के लिए है, कि भोग लेते लेते हमें ऐसा लगना चाहिए कि यही सब कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है, और इससे हमारा मन हटना चाहिए। और इसीलिए वास्तव में इस जगत की, इस प्रपंच की, इस संसार की रचना हुई है। तो इनके साथ जो संयोग होता है, तो जैसे ही अपने को हम संभाल लेते हैं और थोड़ा अविद्या का नाश होता है, तो हमें पता पड़ता है कि हमें इससे आगे बढ़ना है। तो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, और जैसे दीप प्रज्वलित करने से अंधेरे का नाश होता है, ठीक उसी प्रकार अविद्या का नाश होकर
विद्या की वहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है और वह वही वास्तव में हानोपाय बनता है। यह चार बातें हान सॉरी हेय हेय हेतु हान और हानोपाय, यह बहुत महत्वपूर्ण चार बातें पतंजलि महामुनि ने बताई है। इसको सदैव अपने मन में जागृत रखें, इस पर विचार मंथन हम करें। वास्तव में सारा योग दर्शन, ये जो रचना है पतंजलि योग दर्शन की, यह इसी के लिए, इस अविद्या का नाश करके विद्या का प्रकाश उजाला भीतर फैले और उससे वह हानोपाय की अवस्था प्राप्त हो, उसी के लिए इस पतंजल योग दर्शन की रचना पतंजलि महामुनि ने की हुई है। तो यह इसका गर्व है, इस शास्त्र का, यह इसकी मुख्य बातें हैं। तो यह सदैव अपने मन में रखे। और जो लोग आज या कल परसों नहीं सुन पाए रहे थे, उन लोगों को भी यदि बातचीत होती है तो थोड़ा आग्रह करें कि इन बातों को पढ़ ले, थोड़ा आत्मसात कर ले, और थोड़ा ये रिकॉर्डिंग तो हुई है तो थोड़ा इसको सुन ले और इन बातों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से अपने मन में बिठा ले। तो आगे जो प्रक्रिया दी गई है वह प्रक्रिया फिर किस काम के लिए करनी है, यह बिल्कुल दृश्य साफ साफ हो जाएगा और उससे स्वतः ही विवेक ख्याति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इतना कहकर यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। प्रार्थना से यह प्रथम सत्र समाप्त कर दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बस 2 मिनट के लिए बैठते, ज़्यादा नहीं बैठेंगे आज, 2-3 मिनट के लिए जरा सा शांत करते। चलिए आंखें बंद हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, बिल्कुल ढीले ढाले हो जाए, शांत शांत। बस बैठे रहिए निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहिए, आराम से आराम से।
Om